पार्टिसिपेंट्स कोमल और आप सिद्धिराज और कौन कौन? ठीक, इनको अनम्यूट करो। और सिद्धिराज ठीक है भैया। अभी मेरे को स्क्रीन ये वाइट बोर्ड ठीक है। ओके, कोमल, राघव, पार्थ, साहिल को चलिए चैट कर सकते हैं। सबको मेरी आवाज सुनाई दे रही है क्या? आप लोग बोल भी सकते हो, मैंने अनम्यूट किया आप लोगों को, और यू ऑल ऑफ यू कैन चैट आल्सो, सो प्लीज लेट मी नो वेदर ऑल यस। हाँ 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 ठीक है। चलो अब ये बताइए, सर्कल आर यू ऑल एबल टू सी व्हाट इज रिटन इन द बोर्ड? मैंने क्या लिखा है बोर्ड, आप लोग टाइप करके बताइए चैट बॉक्स में। सर्कल, वेरी गुड। सब लोग प्लीज, एवरीवन प्लीज टाइप सर्कल, वेरी गुड। 5-6 पार्टिसिपेंट्स आ गए, वेरी गुड, ठीक है। चलिए थैंक यू सो मच। तो नाउ Dharmender sir, I hope Dharmender sir has completed this chapter. What is that? Similar triangles. This chapter is completed. Yes or no? Yes, very good. ठीक है, please revise last part, please. Yeah, okay, Parth will revise the last part, no problem. Last part मतलब basically Pythagoras theorem, is it? So you want me to revise Pythagoras theorem? Yes, ठीक है, तो we will revise. Okay, now first let me know one more thing I wanted to know. This where it is clear chat, where eraser clear. Okay, your semester exam is coming. Semester exam, I think from 12 to 20th October. Is it? Yes. So your exam date is this. Very good. So please let me know what are the syllabus. Can somebody tell me? For your half yearly semester exam, what is the syllabus? Because I have unmuted all of you, so you all can speak also, because it will take time to write that much. Only 5 students has come so far. Okay, 3 are missing, no problem. We will see about all these things later. So can somebody unmute himself and speak? What are the syllabus in your school for your half yearly exam? One of you please speak. Please unmute yourself. Circles, polynomials, coordinate geometry, construction, AP, quadratic equation. Okay. But circle is not completed. Correct, no? Circle has to be completed here. AP, coordinate geometry. Okay, circles, construction, quadratic equation, polynomial. ठीक है, thank you. So this chapter circle is not completed. This is still remaining. Correct, no? Circle is remaining. Very good. ठीक है, चलो, understood. So now I will revise the Pythagoras theorem and then we'll go ahead with the circles. ठीक है, चलो. So
I will consider as if you all have not studied at all Pythagoras theorem. I will start from the beginning only. Okay. Chaliye. So now please keep your book, pen, notebook ready. So total 5 student has come. Who are the student? Acha. One more thing I wanted to know. Are you all from VPEMS or some other school is also there? Everyone is from this school only? Yes. All the students are from Vidya Pratishthan English Medium School. Thank you so much. Okay. So now we'll begin our class. Okay. Thoda I'll just introduce myself. Okay. So first, my name is विक्रांत. अरे इधर लिखता ही नहीं. विक्रांत खन्ना. ठीक है. So I teach mathematics only, and I in my role in Chaitanya Academy is like taking care of the management part. So and like making the schedule, then checking whether syllabus is going on time or not. Is there any problem? Students के side से, teacher के side से कुछ problem है क्या? So to check all these things, and also I teach mathematics. Okay. So anything else? Chalo, okay. And we will come to know about each other gradually. Clear whiteboard. Okay. So now we'll begin with Pythagoras theorem. So please pay attention. Okay. So first, before starting Pythagoras theorem, I will give you just brief idea. Where it is triangles chapter 4.5.
Okay, students. So sorry we have gone here. So the class was interrupted. Chalo, everybody is able to hear me? Please write yes. Very good. So 6 students are there: Rohan, Siddhiraj, Komal, Parth, and Raghav. Okay. So we will begin now. Okay. चलिए. So now first we will discuss about the Pythagoras theorem. So before discussing Pythagoras theorem, one use so that is called similarity of right triangle. Okay. So what is this? This theorem is given in the textbook, but it will not come for your exam while proving the Pythagoras theorem. But and there are which are used for solving this theorem. Okay, so we will discuss that. So we will write this statement. What is the statement? First, we will discuss that. Okay. So this statement don't have any NCERT. So what is the theorem? Just pay attention, everyone. In a right triangle, so this is a right triangle, and if we draw perpendicular from vertex which is having 90 degree, A, B, C, D. Okay. So this theorem statement is in right triangle, if perpendicular, this is symbol of perpendicular. Okay. If in right triangle, if perpendicular is drawn from angle, sorry, we will write vertex. Okay, just skip. From vertex containing it is okay. Containing 90 degree. In right triangle, if perpendicular is drawn from containing 90 degree. Okay. Then all three right triangles are similar to each other. Okay, so this is the theorem. Okay, so I'll explain this theorem, what it is saying. Okay, so everybody please pay attention now. So what in right triangle? So ABC is here a right triangle. ABC is a right triangle, and what if perpendicular is drawn from containing 90 degree? So which angle is containing, which vertex is containing 90 degree? This V is containing 90 degree. So perpendicular from B to hypotenuse, opposite side. If a perpendicular is drawn from vertex containing 90 degree, then all the three right triangle. So what are the three right triangle here? ADB, BDC, and ABC. These are three right triangles. So in all three triangles are similar to each other. This is the theorem. So this is the statement of this theorem. So what is given over here? All of you know that we write the theorems. So given triangle ABC is right triangle. Triangle ABC is right triangle. Okay.
BD is perpendicular to AC. This much is given. Okay. So now what we have to prove here? To prove what will come? Triangle ADB similar. This is symbol of similar. Triangle ADB is similar to triangle ADB will be similar to triangle ABC will be similar to triangle BDC will be similar to triangle ABC. Okay, so this is the theorem. So in any right triangle, if we draw a perpendicular from the vertex which contains 90 degree, it divides the triangle into two right triangles. And these two right triangles will be similar to each other and also similar to the bigger triangle. So all these three triangles are similar. How come? We will prove this now. So please see, we are going to prove this. Just see here, everybody please pay attention now. Huh? Okay, so if we take this as X, ABC. So just see here, in triangle ADB and triangle ABC. Just see here, everybody please say, pay attention. So angle A, हमको पूरा एंगल लिखना पड़ेगा. वेट अरे कैसा ही रह जाए. ठीक है, पता नहीं इसमें कुछ गड़बड़ होता है. तो ट्राइंगल ADB एंड दिस, तो एंगल BAD will be equal to angle BAD will be equal to angle BAC. How come? This we say as common angle. रीजन क्या है? कॉमन एंगल. कॉमन एंगल मतलब क्या? BAD में ये एंगल है और BAC में भी यही एंगल है, इसलिए कॉमन एंगल हो गया. उसके बाद एंगल AD इक्वल्स टू एंगल ABC. कैसे? दोनों 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री ADB और ये भी 90 डिग्री. आप लोग को पता है एक टेस्ट होता है, MI भरिए, MI पिन. अरे कुछ डाउट है क्या किसी को? वो चैट्स में क्या लिख रहे हैं? प्लीज पे अटेंशन ऑन द क्लास. डोंट चैट, कीप ऑन चैटिंग. व्हेनेवर रिक्वायर्ड देन ओनली यू ऑल चैट. ठीक है ना? कॉमन एंगल. ठीक है, चलो. सो देयरफॉर ट्राइंगल AD will be similar to triangle ABC. कौन से टेस्ट से सिमिलर हुआ? तो इस टेस्ट को हम लोग बोलते हैं AA टेस्ट. उसी तरह सिमिलरली ये जो छोटा वाला ट्राइंगल है CDB और ABC, C कॉमन एंगल है, ये 90 डिग्री और ये 90 डिग्री है B के लिए. तो सिमिलरली क्या हो जाएगा? ट्राइंगल BDC सिमिलर टू ट्राइंगल ABC. तो देखो यहाँ पे ABD सिमिलर हो गया ABC के और BDC सिमिलर हो गया ABC के. करेक्ट. तो पाइथागोरस थ्योरम जो करते हैं ना, उसमें ऐसा ही फिगर होता है. इसके आगे और 2-3 स्टेप्स करने पड़ते हैं. ये यहां तक आना पड़ता है और यहां तक आना पड़ता है. इज इट क्लियर टू एवरीवन? प्लीज चैट इफ इट इज क्लियर टू एवरीवन. ओके, चलो प्लीज राइट डाउन दिस थ्योरम देन. एवरीबॉडी प्लीज राइट डाउन व्हाटएवर इज देयर इन द बोर्ड.
क्या नहीं है इनके पास कुछ, मुझे पता है। होगा चना राजगिरे का लड्डू। चना राजगिरे का लड्डू ये दो ना, आप कुछ पढ़ा रहे हैं क्या? हाँ ठीक है। अच्छा ऑल ऑफ यू प्लीज राइट डाउन दिस फास्ट। आपके पास 2 मिनट का टाइम है। चलो सबका लिखना हो गया प्लीज। जिनका कंप्लीट हो गया प्लीज राइट कंप्लीटेड। चैट बॉक्स में लिख दीजिए जिनका कंप्लीट हो गया। जिनका कंप्लीट हो जाएगा प्लीज लिख दीजिएगा कंप्लीटेड। लिख लिया सब लोगों ने? जल्दी लिखो यार, इतना टाइम लगा कैसे? फर्स्ट इंस्टॉलमेंट पूरी भरो। वीडियो ऑन करने को तो ना बच्चे हैवी चलो
सबने लिख लिया क्या? प्लीज चैट। Students, are you all with me? Please chat whether you have written or not. कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहे। Are you all able to hear me? अरे मेरी आवाज सुनाई दे रही कि नहीं आप लोगों को? ना पता नहीं सुनाई दे रहा है कि कोई रिस्पॉन्ड ही नहीं कर रहा है। सर्कल शुरू कर दो सर। अच्छा चलो सब लोगों ने लिख लिया ना? अरे कर देते हैं यार, कर देते हैं, ठीक है। सर्कल्स अभी आप लोग उसी समय बोलना चाहिए था ना, अभी स्टार्ट कर दिया तो मैं इसको भी कंप्लीट कर देता हूँ, फिर ज्यादा कुछ नहीं है। चलो देखो पाइथागोरस थ्योरम में अभी यहाँ तक तो समझ में आ गया, ये दोनों छोटे ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है। चलो अभी मैं इसको पाइथागोरस थ्योरम आप लोग को याद हो जाएगा अभी। चलिए इधर देखिए, तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं पाइथागोरस थ्योरम। चलिए इधर देखिए पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। चलो सर्कल शुरू कर दो, ठीक है कर देंगे भाई, जस्ट थोड़ा वेट कीजिए। कुछ स्टूडेंट का रिक्वेस्ट था थोड़ा लास्ट पार्ट रिवाइज करने का, सो आई एम रिवाइजिंग इट। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। चलो अभी पाइथागोरस थ्योरम तो स्टेटमेंट पता ही है आप लोगों को, बुक में दिया है, स्टेटमेंट लिख लीजिएगा। आप लोगों ने कुछ क्वेश्चन किया तो वो भी पता है, एकदम सिंपल है। अभी यहाँ तक किया है ना आप लोगों ने, यही चीज को थोड़ा सा आगे बढ़ाना है तो हमको पाइथागोरस थ्योरम मिल जाता है। ये देखिए सेम फिगर, एवरीथिंग इज सेम ओनली, ए बी सी डी। तो यहाँ पे क्या हमारा गिवन में क्या आ जाता है पाइथागोरस थ्योरम के? आप लोग एक चीज याद रखना, फिगर गिवन टू प्रूफ के लिए भी मार्क्स रहता है एग्जाम में। ये 90 डिग्री का एंगल है, इधर ये 90 डिग्री है, ठीक है ना। पाइथागोरस थ्योरम में ये जो बीडी है ना, ये कंस्ट्रक्शन के अंदर आता है। तो गिवन में क्या है? ट्राइंगल ए बी सी। ओके ठीक है, मैं डार्क ब्लू नहीं यूज करता हूँ, मैं यूज करता हूँ रेड। चलो ठीक है, तो ट्राइंगल ए बी सी इज राइट ट्राइंगल। ओके इतना ही दिया हुआ। टू प्रूफ में क्या आएगा इसका? टू प्रूफ में आएगा स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ए सी स्क्वायर, ठीक है। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्शन आ जाता है, वो जो फिगर है ना बीडी, ड्रॉ बीडी परपेंडिकुलर टू एसी। अभी देखिए आप लोगों ने वो चीज किया था ना, बस उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे, हमारा पाइथागोरस थ्योरम हो जाएगा। देखो तो क्या है, हम लोग लेंगे ट्राइंगल, इन ट्राइंगल ए डी बी एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। तो देखिए हमको पता है एंगल बी ए डी इक्वल्स टू एंगल बी ए सी। हाउ कम? कॉमन एंगल है, दोनों कॉमन एंगल, कॉमन एंगल। उसके बाद एंगल बी डी ए
इक्वल्स टू एंगल ए बी सी। कैसे इक्वल है? बोथ 90 डिग्री। ये रीजन भी लिखना पड़ता है हमें। ये हो गया। तो आपको पता है अगर किसी ट्राइंगल के दो एंगल अगर इक्वल हो गया तो ये एंगल कॉमन है और ये इधर 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री। therefore triangle ADB is similar to triangle ABC। ऐसे भैया तो ए टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी से। यहां तक तो किया था हम लोगों ने ऑलरेडी। अभी हमको यहाँ पे साइड्स लेना है, क्यों क्या प्रूव करना है? AB स्क्वायर BC स्क्वायर AC स्क्वायर। तो देखिए AB और AC आ जाएगा यहाँ पे, BC नहीं आएगा, BC दूसरे वाले में आएगा, ठीक है। तो AB और AC, तो ये वाले ट्राइंगल में AB है तो इधर AB लिया, फर्स्ट एंड लास्ट लिया, तो इधर भी फर्स्ट एंड लास्ट लेना पड़ता है, AC हो गया। उसके बाद अभी देखिए यहाँ पे AB स्क्वायर है, तो AB स्क्वायर कैसे मिलेगा? हमारा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद AB होना चाहिए। तो ये AB है, फर्स्ट सेकंड, तो यहाँ पे भी फर्स्ट सेकंड करना पड़ेगा, AD। इस प्रॉपर्टीज को क्या बोलते हैं? कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ सिमिलर ट्राइंगल, CSST, जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। अभी हम लोग अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो AB इंटू AB क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो जाएगा, और ये AC इंटू हो जाएगा AD। तो ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। और फिर दूसरी सिमिलरली करेंगे, उतना हमें लिखने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली ये जो BC स्क्वायर है ना, ये वाला ट्राइंगल और ये वाला ट्राइंगल, हम तो डायरेक्टली लिखेंगे इसको BC स्क्वायर, तो वो क्या हो जाएगा? AC, और AC के जगह AD के जगह यहाँ पे CD हो जाएगा, ये सेकंड। तो ये आ गया हमारा, ये दोनों AB स्क्वायर BC स्क्वायर आ गया। अभी इन दोनों यहाँ पे बीच में प्लस साइन है, AB स्क्वायर यहाँ पे BC स्क्वायर है, तो प्लस लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, ऐड फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये लीजिए आपका पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो गया। AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC, दोनों जगह AC है, AC इंटू AD प्लस AC इंटू CD। अभी दोनों जगह AC है तो AC को कॉमन लिया जा सकता है, हाँ लिया जा सकता है, क्यों नहीं लेंगे। AC कॉमन ले लिए तो आ गया AD प्लस CD। अभी फिगर में देखिए AD प्लस CD क्या हो जाएगा? AD प्लस CD हो जाएगा AC, तो AC इंटू AC इंटू AC क्या हो जाएगा? AB स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा हो गया पाइथागोरस थ्योरम कंप्लीट। तो क्या हो गया भैया? यहाँ पे एक स्टेप में लिख देंगे, बस यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ मैं, therefore AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर इक्वल्स टू AC स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा प्रूव हो गया। सबको क्लियर है? किसी को डाउट है इसमें? ओके सर, अंडरस्टूड। चलिए जल्दी से लिख लीजिए इसको। एवरीबडी प्लीज राइट डाउन दिस वेरी फास्ट। किसी को डाउट है तो प्लीज लेट मी नो। आप चैट बॉक्स में बताइए जिनको डाउट है, नहीं तो आप अनम्यूट करके बता भी, बोल भी सकते हैं। मैंने आप सबको अनम्यूट करके रखा हुआ। ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क्स लगा लीजिए, ये एग्जाम में बहुत बार आता है। यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि नहीं मुझे नहीं पता। AC AD प्लस CD है,
ओके, लिख लिया। चलो सब लोगों ने लिख लिया। अगर आप लोग ना अगर नहीं शॉर्ट भी ले लिया कीजिएगा, ठीक है ना, थोड़ा टाइम का प्रॉब्लम रहता है, आपको पता है थोड़ा। चलो तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम, एकदम सिंपल है। एक छोटा ट्राइंगल और ये सिमिलर किया, उसमें से ये मिल जाता है। फिर उसी तरह दूसरा वाला ट्राइंगल लेंगे ना, तो उसमें से ये मिलता है BC स्क्वायर, और इन दोनों को ऐड कर दिया तो हमारा पाइथागोरस थ्योरम प्रूव हो जाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 4 मार्क्स का एग्जाम में आएगा और इस बार आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। चलिए अभी हम लोग, ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। चलो मैं इसको अभी इरेज कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, कोई डाउट नहीं, लिख लिया, वेरी गुड। ठीक है, अगर किसी को टाइम लगता है लिखने में तो प्लीज आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिया कीजिएगा। चलो मैं क्लियर कर रहा हूँ इसको। ओके, तो ये हो गया हमारा पाइथागोरस थ्योरम। और एक कॉन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, बहुत सिंपल है, वो एग्जाम में नहीं आएगा प्रूफ के लिए,